Okay, good evening and namaskar. 7 p.m. sharp in my laptop clock. So I hope कल आप जो जिन लोगों ने सब अटेंड किया है आपको मजा आया होगा. I mean, you might have enjoyed it. So Bilal ji says good evening. Thank you so much. So today is our day 2, 2nd August 2025 and 7 p.m. sharp. We are live. So without any delay, let's move forward. So again, so day 2, and what are we going to learn today? Do you remember what we have discussed yesterday? आज का क्या topic है? Anybody who can give me? So आज का topic है crack the code of insulin resistance. So this is the heart of metabolic health. So कल अगर हमने एक bird's eye view देखा था, उसका एक larger picture देखा था, तो today we are going to zoom into it. And we are going to discuss about insulin and insulin resistance. So day 1 के quick recap करेंगे. So all of you who have attended or who have not attended. So moving forward, quick recap. So as we understood, whenever we eat a carb heavy food, which ultimately breaks down to glucose, and our brain get overwhelmed because our brain love glucose. It's easy energy. एंड ये काफी उसको एक डोपामाइन हाइक देता है, तो ओवरवेल्म होता है. बट एट द सेम टाइम आवर ब्रेन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट टू मच ऑफ ग्लूकोज इज नॉट ग्रेट फॉर द बॉडी. सो as I said, brain get overwhelmed when it get that bunch of glucose जब उसको hit करता है. But at the same time it understand that it's not great, and it sends signal to pancreas to manage it. And how pancreas manage that elevated blood sugar? It is by producing something called insulin, and insulin is our sugar regulating hormone. So blood sugar rise, that triggers beta cells to release more insulin. And this also we saw how exactly the mechanism behind how glucose is being taken inside the cell for energy. So the mechanism of insulin and insulin receptors. जब तक ये सही काम कर रहे हैं तब तक आप इंसुलिन सेंसिटिव हो. आप कितने भी ग्लूकोज खा रहे हो, बॉडी इज एबल टू मैनेज इट. बट सारे प्रॉब्लम शुरू होती है जब ये सेंसर काम नहीं करती. ये ताला चाबी या जो 5 स्टार होटल में होता है ना, सेंसर बेस्ड वो की होता है. तो व्हेन दैट डजंट वर्क, देन इनफ्लो ऑफ ग्लूकोज में वो इम्पैक्ट डालता है. So sometimes there is lot of space inside the cell where it can take glucose, but due to this is not functioning properly, glucose doesn't go inside. And sometimes there are too much of glucose, cells doesn't require, but influx of glucose बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसके कारण भी cell respond नहीं करता है इंसुलिन का knocking को. And then in many occasion जब body में बहुत ज्यादा fat deposit होता है, so that also impact the insulin sensors. Then we also saw a very important message. Body is changing rapidly at cellular level with every passing year. So as a result, the same little bit of insulin which was working efficiently in a very minimum quantity, वो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जो इतना ज्यादा ग्लूकोज लोड बढ़ रहा है डे आफ्टर डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर, बिकॉज वी डोंट रियलाइज. नाइदर हमारे साइंस बुक में हमें पढ़ाया गया है, ना कि हमारा मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है उनको उनकी किताबों में पढ़ाया गया है कि जब हमारा सेल्स एज करते हैं, बॉडी एज करता है, उसका टॉलरेंस टुवर्ड्स कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली कम्स डाउन. सो बिकॉज दैट हैज नेवर बीन टोल्ड टू अस, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो हमारा सोशल एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो खाने पीने का तौर तरीके है, जो कल्चर है, उसमें इतना कार्ब हेवी खाते हैं, हम सोच ही नहीं पाते कि भाई वही रोटी चावल डोसा इडली उपमा पोहा के सिवा और कुछ हम खा भी सकते हैं, या फिर इसको कम करके दूसरा चीजों को बढ़ाया जा सकता है. तो इसकी तरफ हमारा नजर नहीं जाता है. वी आर सो ब्रेन वॉश्ड और फाइन ट्यून टुवर्ड्स दैट. तो जिसके कारण ये बढ़ता रहता है, वेयर एज योर बॉडीज टॉलरेंस इज कमिंग डाउन. सो जिसके चलते हो क्या रहा है, इंसुलिन लेवल बढ़ रहा है. कुछ लोगों में बढ़ रहा है, अगर आपका पैनक्रियास हेल्दी है तो इंसुलिन बढ़ेगा. एंड जो लोगों का पैनक्रियास उतना हेल्दी नहीं है, इट इज नॉट एबल टू मीट द डिमांड ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई इंसुलिन इन रेस्पॉन्स टू ग्लूकोज, फिर उनके केसेस में वही लो इंसुलिन रहते हुए भी उसका फंक्शनैलिटी या एफिशिएंसी डाउन होने लगता है. जिसका ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, until certain time
ये आपका मैनेज करेगा. Maybe इसके at what cost? At the cost of you getting obese, or maybe high triglyceride in your blood, or hypertension, but at least it is able to protect you from diabetes, high blood sugar. But जो भी हो, ज्यादा insulin या less efficient insulin leads us towards what is called insulin resistance. So that is how we move from insulin sensitivity towards insulin resistance. So that was what we had discussed, and we also कल आपको बताया था, जो आज भी लागू होता है वो यही है कि my free bonus 2 ebooks worth ₹3,000 are only for those people who are attending this live. So those people who are not attending live, this is not for them. And for this, you have to stay till the end where I will share Google attendance form, and इसको आप fill up करोगे, and based on that, at the end of day 3, you will receive this 2 ebook in your email. And then also मैंने कल ये बताया था, जो आज एक repeat कर रहा हूँ, all those people who have registered for this workshop, they will get a free gift in terms of my access to my community app called Insulin Fix, और इसमें भी कुछ free features है जिसको आप explore कर सकते हो, and it is available in Google Play Store and App Store, which can be downloaded. So I hopefully कल आपने ये post day 1 workshop आपने किया होगा. अगर नहीं किया होगा तो फिर आज आप after the session आप कर सकते हो. Now, focusing on insulin. So what is insulin? So insulin is nothing. It is a hormone, right? इसका बहुत सारा काम है बॉडी के अंदर, और सारे काम के बारे में, सारे फीचर्स के बारे में we will discuss. But then थोड़ा सा उसके बारे में in-depth knowledge लेंगे, so that you never forget it. So it is produced by a organ, and उस organ का नाम है pancreas. So the position of pancreas is here. It is below the लिवर एंड स्टमक. तो इसलिए जब भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है या इमेजिंग किया जाता है, इन मेनी ओकेजन पैनक्रियास इज नॉट विजिबल बिकॉज इट इज ऑलवेज हिडन बिलो स्टमक एंड लिवर. सो इसका अगर क्लियरर पिक्चर हम देखने की कोशिश करेंगे, सो दिस इज अ मोर क्लियरर पिक्चर ऑफ योर पैनक्रियास, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज. दिस इज कॉल्ड मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, जहां पे आपका एंजाइम्स आता है, इवन इंसुलिन भी इसी से आता है. सो एवरीथिंग इज हियर. सो देयर इज ऑल्सो ए बाइल डक्ट हियर. सो दैट इज द अरेंजमेंट. थोड़ा और डीप डाइव अगर करता हूं मैं, जस्ट फॉर द नॉलेज से, अगर हम इसको नहीं भी समझेंगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट फॉर द एडिशनल नॉलेज से, इफ यू डू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ पैनक्रियास, सो इसका सेंटर पोर्शन में रहता है समथिंग, एक बंच ऑफ सेल्स रहता है जिसको कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहन, एंड यही सेल्स, यहीं से आता है इंसुलिन हार्मोन. Whereas अगर इसका आउटर साइड में आप देखते हो, सो these are these ducts, they produce the digestive enzymes. एंड ये जो आइलेट ऑफ लैंगर है ना, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. आज यू मे सी हियर ए बंच ऑफ सेल कॉल्ड अल्फा सेल, समथिंग कॉल्ड डेल्टा सेल, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड बीटा सेल. सो इंसुलिन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल. ओके, सो विद दिस नॉलेज अभी हम थोड़ा देखेंगे इंसुलिन का रोल क्या है. सो इंसुलिन इज सर्टेनली ब्लड शुगर मैनेजिंग हार्मोन, बट एंड हमेशा जब इंसुलिन का नाम आता है, वी ऑलवेज कोरिलेटेड विद डायबिटीज. तो हमेशा बोलते हैं, हमें इंसुलिन के बारे में इतना एक थॉट आता है कि व्हाई शुड आई बी बॉदर अबाउट इंसुलिन, आई एम नॉट डायबिटिक. फेयर एनफ, बट देन you have to bother because insulin is not just a sugar managing hormone, it is also a master metabolic hormone. So this is responsible for your growth, your energy management, your many other things. आपका bone health, आपका mostly when I say energy management, energy for all the critical organs. तो अगर किसी का you don't feel energetic, your heart is not functioning properly, you are not able to listen properly, okay, आपका bone strength कम हो रहा है, या osteoarthritis या porosis टाइप का हो रहा है, तो इसके लिए भी इंसुलिन जिम्मेदार है. एट द सेम टाइम इंसुलिन का कमी से या ज्यादा होने से, this can also impact our hormonal health, such as young people may get low libido, erectile dysfunction, hypertension, blood pressure भी होता है. देन आपका थायराइड डिस्फंक्शन भी हो सकता है, फीमेल में पीसीओएस काइंड ऑफ सिचुएशन आ सकता है. तो इट हैज अ लार्जर रोल टू प्ले अपार्ट फ्रॉम ब्लड शुगर मैनेजमेंट. सो दिस इज अ स्क्रीनशॉट, एक ग्लैंस है टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ इंसुलिन थ्रू आउट आवर बॉडीली फंक्शंस.
So it has impact on brain, your hearing capacity, okay, heart function, muscle function. आपका फैट डिपॉजिट होना भी एक जरूरी है बॉडी के लिए, ओके, सम एसेंशियल फैट, तो उसके लिए भी इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल। आवर सेक्स ऑर्गन्स एज आई सेड, बोन, नर्व्स, ऑल दिस थिंग्स, सो ब्रेन, ईयर, हार्ट, मसल्स, फैट, liver function, our sexual organs, bone density, nerves and neurons. तो आपको एक चीज यहां पे इसलिए मैं ये सारे डिटेल्स दिखा रहा हूं कि एज लॉन्ग एज योर इंसुलिन इज फंक्शनिंग एट इट्स बेस्ट, ऑल योर ऑर्गन्स का जो फंक्शनैलिटी वो भी बढ़िया चलेगा, बिकॉज इंसुलिन हैज ए रोल टू प्ले। बट इफ इंसुलिन इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड और इसका एफिशिएंसी में अगर कुछ इंपैक्ट आता है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इसका जो इंपैक्ट है वो आपका ये जो ऑर्गन का फंक्शन में भी आएगा, एंड योर इंसुलिन एफिशिएंसी और functionality can get affected by your food habit primarily. Of course, stress is something, sleep is something, proper natural environment से आप दूर रहते हो, वो भी एक कुछ चीजें होती है जो इंसुलिन को अफेक्ट कर सकता है। बट जो सबसे प्राइमरी फैक्टर होता है आपका डाइट, आपका फूड, एंड खास करके व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फूड, इट इज कार्बोहाइड्रेट दैट इज गिविंग ग्लूकोज। सो ग्लूकोज इज द स्टिमुली फॉर insulin. Now let us understand the superhero nature of insulin in our body, because insulin वो हमारा हीरो जैसे काम करता है, बट हमारे आदतों के कारण, due to our own behavior, the same hero which is protecting us at given point of time, it is becoming or it start acting against our bodily processes. यही विलन हो जाता है, करेक्ट। तो उससे पहले सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो हीरो नेचर है, हाउ इट इज प्रोटेक्टिंग अस। सो हियर आई से इंसुलिन द गार्डियन इनसाइड। नाउ टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू लुक एट आवर डेली कॉमन फूड। सो आई एम प्रेटी श्योर आप सब एग्री करोगे, यही मोर और लेस हमारा फूड होता है। कैन यू गिव मी इन द चैट बॉक्स, डू यू एग्री दीज आर आवर कॉमन फूड, more or less day in day out we are eating, right? लेकिन ये भी आप एग्री करोगे ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, isn't it? So such food, every meal is a challenge for the body, that we need to understand. So this animation is telling you how insulin is protecting us. So अगर आपका शरीर, आपका बॉडी एक सीटी के बराबर है, तो एवरी बाइट यू आर ईटिंग इन टर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विच आर मोस्टली द कॉमन फूड दैट यू सॉ, तो इट इज लाइक ईच बाइट इज लाइक ए ट्रक फुल ऑफ शुगर एंटरिंग इनटू योर सिटी, एंड दीज आर वेरी वेरी chaotic ट्रक। ये किसी की बात नहीं मानते, किसी की बात नहीं सुनते, अपनी मर्जी से चलते हैं, तो एक्सीडेंट होएगा, ओवरफ्लो होगा, करेक्ट, एंड शुगर्स आर वेरी वेरी स्टिकी इनसाइड द ब्लड, तो केओस होगा बॉडी के अंदर। इसको मैनेज करने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट एक पुलिस कॉप की जरूरत है। तो हियर इंसुलिन इज एक्टिंग एज द मोस्ट स्ट्रिक्ट ट्रैफिक कॉप, जो कि इस शुगर लैडन ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, इन द सेंस इट ओपन्स अप द गेट ऑफ द सेल्स, particularly your muscles, your liver, जहां पे सबसे ज्यादा ग्लूकोज इनटेक हो सकता है, and when that part is full, it immediately converts the extra glucose to fat, which we saw yesterday, right? And tell the sugar, move in, park here, don't cause trouble in the blood stream. So देखा जाए तो thanks to insulin, sugar level stays balanced even if you are eating so much कार्बोहाइड्रेट, जो हमने कल देखा था कितना रिक्वायरमेंट है वर्सेस कितना ज्यादा हम डेली खा रहे हैं डे इन डे आउट। सो थैंक्स टू इंसुलिन, एज लॉन्ग एज इट इज मैनेजिंग द शो वेरी एफिशिएंटली, यू आर गुड मेटाबॉलिकली। बट देन आपको यह भी समझना पड़ेगा ये दबाव कब तक बॉडी झेलेगा। सो आपका इंसुलिन भी बूढ़ा हो रहा है, उसका भी एक कैपेसिटी जो है, आप बचपन में आपके बच्चों के साथ जितना खेल रहे थे दौड़ भाग करके फील्ड में, तो आप जब 30s के में थे या अर्ली 40s में थे, बट व्हेन यू रीच टू 60, 65, 70, योर किड्स कैन नॉट एक्सपेक्ट यू टू रन एट देयर पेस, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए,
तो उनका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, वो भाग दौड़ कर सकते हैं, तो आप भी नहीं, आप उस हिसाब से नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं पे आपका वो कैपेसिटी कम हो रहा है। योर किड्स शुड रिस्पेक्ट दैट, एंड उनका एक्सपेक्टेशन भी कम होना चाहिए आपसे। तो ठीक उसी तरह आपका जो इंसुलिन का कैपेसिटी है, बॉडी का टॉलरेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट कम हो रहा है, क्योंकि आपका इंसुलिन का एफिशिएंसी भी कहीं ना कहीं पे नेचुरली नीचे जा रहा है। इफ you do not respect that and keep doing that, the insulin will not be able to manage the show and all the chaos can happen. Now, why it is important for the insulin to manage glucose? Because as I said, glucose is very, very toxic. ये काफी chaotic होता है, toxic होता है, sticky होता है. So the unknown side effects of blood glucose. तो यहां पे एक चीज मैं बताऊंगा, how many of you are non-diabetic? And because you are non-diabetic, you don't test your HbA1c. Because जैसे कि पता होगा, HbA1c मोस्टली डायबिटिक पैरामीटर है, जो लोग डायबिटिक नोन है वो करते हैं. बट इफ यू हैव टू टेक माई वर्ड्स, इवन इफ यू आर नॉन डायबिटिक, you should consider checking your HbA1c every time you get your blood test done, along with fasting sugar, and then of course I will explain you fasting insulin, क्योंकि ये तीनों चीजें इंटर रिलेटेड है. तो HbA1c अगर आप टेस्ट करते हो, व्हाट इज HbA1c? HbA1c एक्चुअली इज द मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ ग्लाइकेशन. सो ग्लूकोज एक डैमेजिंग प्रोसेस इनिशिएट करता है बॉडी के अंदर, जिसको कहते हैं ग्लाइकेशन, या फिर इसका जो बड़ा वाला नाम है ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं, इसको शॉर्ट में ग्लाइकेशन कहते हैं. एंड इफ यू नो द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ HbA1c, कैन समवन give me in the chat box what is exactly the definition of HbA1c? HbA1c stands for glycosylated hemoglobin percentage. Absolutely. Glycosylated hemoglobin. So glycosylated hemoglobin is an unhealthy hemoglobin. Yes, इसका इंटरप्रिटेशन होता है, मिस्टर मुरली नायर ने मेंशन किया 3 months एवरेज ब्लड टेस्ट. ठीक है, दैट इज फाइन, दैट इज अ मैथमेटिकल कोरिलेशनशिप होता है उससे. बट एक्चुअल टर्म इज ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन का क्या परसेंटेज है आपका ब्लड के अंदर. सो हेल्दी हेमोग्लोबिन, ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन. ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन इज अ डैमेज हेमोग्लोबिन. सो ग्लूकोज हैज द कैपेसिटी टू डैमेज योर हेमोग्लोबिन. सो 5.7 के ऊपर जाते हो तो आप प्री डायबिटीज होते हो, और 6.5 के ऊपर जब जाते हो डायबिटिक होता है. बट देन क्या हमें सिर्फ 5.7 क्रॉस करने के बाद डर लगना चाहिए? 5.69 पे हमें डर नहीं लगना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? So whether it is 5.7 or 6 or 6.5, or whether it is 4.5 or 5, everything is indication of glycosylation. Everything is a indication of damage. So your damage is your damage is your damage, irrespective of whether it is 6.5, 7.5, 8.5, or for that matter 4.5 or 5. तो हमारा वो डैमेज जितना कम रहेगा उतना बेहतर है. सो हमें थोड़ा सा जो कैजुअल एटीट्यूड है हमारा, उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा. And we can do that only when you have the right knowledge. So what is glycosylation or glycation? It is when sugar bound with protein. हमारा बॉडी का A to Z सब कुछ प्रोटीन में बना हुआ है, बट शुगर उतना ही बॉडी में होना चाहिए जितना उस तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में. बट हम तो खाते हैं 10 गुना, 15 गुना, 100 गुना ज्यादा. तो वहां पे शुगर अगर फैट में कन्वर्ट हो रहा है, आप ओबेस हो रहे हो, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, so that is in a way the natural process है. बट अगर ये प्रॉपरली नहीं हो पा रहे और शुगर एज ए शुगर या ग्लूकोज ब्लड में बढ़ेगा, सो इट हैज ए डैमेजिंग इंपैक्ट. दैट इज ग्लाइकोसिलेशन प्रोसेस होगा, वेर इट विल बाउंड विथ प्रोटीन. एंड जब ये बाउंड हो जाता है, ग्लाइकोसिलेटेड हो जाता है, इट इज एब्सोल्युटली यूजलेस फॉर द बॉडी. बट एट द सेम टाइम ये बॉडी में और डैमेज कर सकता है, हाईली इंफ्लामेटरी हो जाता है, इट कैन डैमेज फर्दर. एंड जो रिजल्टेंट होता है इसको कहा जाता है AGE. इन शॉर्ट, इन द फुल फॉर्म में उसको कहा जाता है एडवांस्ड ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट. एंड लेट मी टेल यू, दिस इज द रीजन फॉर योर एजिंग. सो एडवांस्ड ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट इज एज, एंड यही एज से आया हुआ है द टर्मिनोलॉजी एजिंग. सो जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, हमारे बॉडी में AGE प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाता है. फ्रेश प्रोटीन नहीं बनता है, जो पुराने ओल्ड प्रोटीन है उस शुगर के साथ बाइंड होके AGE बढ़ने लगता है, एंड दैट्स हाउ वी एज. तो अगर आपका एजिंग प्रोसेस को स्लो करना है,
तो एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस होना, उसको स्लो डाउन करना पड़ेगा, और उसको स्लो डाउन आप तब कर सकते हो जब शुगर का इंटेक कम होएगा। तो ग्लूकोज is the reason for high glucose indulgence, is the reason for early aging. Okay, so glucose bound with protein to produce AGE, advanced glycated end products, and as you can see from this diagram, so ये representation है, it's a very very dangerous element inside the body. So अगर glycation होता है तो इसका impact हमारे body में होता है। Unfortunately, due to lack of knowledge, हम इसको पहचान नहीं पाते हैं। So as you can see here, I have just noted down very few common thing. इसके बाद आप और भी रिसर्च कर सकते हो कि आपका बॉडी में ग्लाइकेशन के कारण क्या क्या प्रॉब्लम होती है। द मोस्ट कॉमन आर प्री मैच्योर एजिंग, जल्दी बूढ़े होते हैं और इसका रिफ्लेक्शन स्किन पे आता है। तो यू माइट हैव सीन सम पीपल एट 60 दे लुक्स अमेजिंग, यंगर 10 years यंगर देन देयर एज। दैट मीन्स उनके बॉडी में एजी प्रोडक्शन बहुत ही कम है, ना का बराबर है। Versus you may also see people at 40 they look like 50, or at 50 they look like 60. झुर्रियां पड़ रहा है, स्किन डार्कनिंग हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है। इसके बाद आपका किडनी में डैमेज करता है, तो ग्लाइकेशन बढ़ेगा तो किडनी का EGFR कम होने लगेगा, फिर आपका क्रिएटिनाइन बढ़ेगा, आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, तो बेसिकली वो किडनी को डैमेज कर रहा है। कैटरैक्ट होता है आंखों में, इट इज नथिंग बट एजी फॉर्मेशन इन योर आईज। मसल के अंदर एजी फॉर्मेशन होगा, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, घर में बैठे हो, ऐसे खाते पीते मस्ती में हो, लेकिन फिर भी मोच यहाँ पे आ रहा है, दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, ये सब हो रहा है। क्यों हो रहा है? मसल्स में डैमेज हो रहा है ड्यू टू एजी। जल्दी भूल रहे हैं हम, ब्रेन में एजिंग हो रहा है, एजी फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रेन का जो कैपेसिटी है वो खराब हो रहा है, तो अल्जाइमर होता है। एंड यही चीज जब आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में होता है तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होता है। सो ग्लाइकेशन इज डेंजरस एंड इट कैन अफेक्ट योर वेल बींग। हो सकता है हमारा मौत ना हो जाए, बट देन इट विल अफेक्ट योर वेल बींग, यू विल नॉट बी एट योर बेस्ट। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे आते हैं, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंसुलिन, बट एक डिफरेंट पिक्चर देखने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम लोग अपना जो ब्लड रिपोर्ट करते हैं उसमें जो एक टेस्ट बाय डिफॉल्ट होती है वो होता है ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज, ये बाय डिफॉल्ट होता है। और हम उसी को ध्यान देते हुए हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, हमारे डॉक्टर्स, हम खुद, हाउ हेल्दी वी आर और हाउ हेल्दी वी आर नॉट। करेक्ट? तो हम, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 20-25 साल की उम्र में हम फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं, एंड एज यू नो द गाइडलाइंस इज 100 के नीचे आपका फास्टिंग शुगर रहेगा तो आप हेल्दी हो। तो आप 20-25 साल में देख रहे हो 85 है, 30-35 के आसपास देख रहे हो 90 है, 45 के आसपास देख रहे हो 95 है। तो यहां तक तो आपका यही इंटरप्रिटेशन रह गया, आई एम हेल्दी। फिर अचानक देख रहे हो कि भाई 5 साल के अंदर ये 110 पे चला गया, फिर आप थोड़े से पैनिक हो जाते हो, फिर डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलते हैं कि आपके खाने में ये कट करो, वो कट करो, थोड़ा वॉकिंग वॉकिंग करो, तो फिर ये ब्लड शुगर ठीक हो जाएगा, अदरवाइज यू मे गेट इनटू डायबिटीज। फिर अचानक आप सब कुछ करने के बावजूद भी आप अनदर 5 years के बाद देखते हो भाई मेरा 126-130 के आसपास फास्टिंग शुगर रहता है, एंड दैट इज व्हेन योर डॉक्टर विल आस्क यू टू गो एंड गेट योर HbA1c डन। एंड HbA1c अगर आपका उस टाइम में देखोगे तो ये पहुंच जाता है 6.5-7.5, देन इट इज अ कंफर्म डायबिटीज, एंड देन वो सारे बंच ऑफ मेडिकेशन स्टार्ट हो जाता है। दिस इज अवर एटीट्यूड। सो हियर व्हाट वी आर मिसिंग, वी आर मिसिंग द, यू नो, मैं बताऊंगा उसको, मैं बोलता हूं द स्लीपिंग एलिफेंट इन द रूम, हम उसको देख नहीं पाते। सो सिर्फ शुगर फोकस होना इन आवर ब्लड रिपोर्ट फॉर एवरीथिंग इज लाइक लुकिंग एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो आप सबको टाइटैनिक का कहानी मालूम होगा, बहुत सारे लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली पिक्चर देखी होंगी। तो अगर हम उस पिक को देख के छोटा है बोल के एसेस करेंगे, ये छोटा है, कुछ डेंजर नहीं है, एंड वी आर नॉट एसेसिंग the submerged part of this hillock or the iceberg. So it is what we see versus the reality, what we don't see. So here is the thing, as I said, आप ऊपर में सिर्फ नॉर्मल ब्लड शुगर देख रहे हो, मतलब सिर्फ आइसबर्ग का टिप को देख रहे हो, लेकिन सब कुछ नॉर्मल ब्लड शुगर होते हुए भी आप अचानक अपने आप को ये सारे कंडीशन में पाते हो, और
परेशान होते रहते हो कि भाई ऐसा क्यों है, ओबेसिटी क्यों हो रहा है, स्किन टैक्स क्यों आ रहा है, डार्कनिंग ऑफ द स्किन विच इज कॉल्ड एक्यांथोसिस नाइजरिकनो क्यों हो रहा है, भूख बहुत ज्यादा क्यों लग रहा है, अभी भी मैं खा रहा हूं लेकिन हर 2 घंटे में मेरे को भूख लग रहा है, खाने के बाद नींद आ रहा है, आपको फैटी लिवर हो रहा है, लो एनर्जी फटीग हो रहा है, लो लिबिडो हो रहा है, डिप्रेशन एंजाइटी हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, थायराइड डिस्फंक्शन हो रहा है, शुगर तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम परेशान होते रहते हैं। द रीजन इज व्हाट वी आर नॉट चेकिंग इज व्हाट इज अवर इंसुलिन लेवल, एंड इंसुलिन लेवल को हम जज करते हैं, फास्टिंग इंसुलिन निकालते हैं, फिर इसका एक रिलेशनशिप होता है ब्लड शुगर के साथ फास्टिंग, जहां से हम एक फॉर्मूला आता है विच आई विल शो यू नेक्स्ट, इसको हम हुमायर कहते हैं। तो वी डोंट डू ए होमा IR टेस्ट और फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट। अगर हम ये करेंगे तो पता चलेगा कि नॉर्मल होते हुए भी ये सारी चीजें क्यों हो रहा है। सो हियर इज द थिंग, जब हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल था, ये 3 स्टेज में हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल था, साथ में अगर हमने इंसुलिन टेस्ट किया होता, सो दिस रेड थिंग इज इंसुलिन, तो हमें पता चलता कि भाई यहां पे तो मेरा जो नॉर्मल है वो रियली नॉर्मल है, बिकॉज माई इंसुलिन इज ऑल्सो इन नॉर्मल। सो इंसुलिन मेरा नॉर्मल कहां होना चाहिए, 6 के नीचे इज नॉर्मल, 2.5 to 6, दिस इज द नॉर्मल इंसुलिन जोन। हैविंग सेड दैट, अगर आप रिपोर्ट देखोगे वहां पे लिखा रहता है 2.5 to 25, और ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। और ये मिस्टेक सिर्फ हम नहीं करते, आपने हम कॉमन इंसान हम नहीं करते, इवन डॉक्टर्स भी इसी चीज को मान के चलते हैं कि आपका अगर 20-25 भी इंसुलिन रहता है तो बोलते हैं नॉर्मल है। हकीकत वो नहीं है। अगर आपको सुपर हेल्दी रहना है तो आपका फास्टिंग इंसुलिन 6.5 पे रहना चाहिए, आइडियली सिंगल डिजिट पे रहना चाहिए, 10 से नीचे, बट देन उसमें भी जितना लोअर साइड में रहेगा उतना बढ़िया है। अगर इवन सम पीपल डूइंग ग्रेट एट 7, 8, 9 फास्टिंग इंसुलिन, बट देन सम पीपल इवन 6.5, 7 में भी डायबिटिक एंड अदर कंडीशंस आ जाता है। सो अगर इस कंडीशन में जब 35 में आपका ये 90 के आसपास था, उस टाइम में अगर आप इंसुलिन चेक कर लिया होता तो इंसुलिन आप यहां पे देखोगे कि ये 10 क्रॉस कर गया है, और यहां पे अगर चेक कर लिया होता तो आपको मिल जाता कि भाई ये तो 15-20 के आसपास टच कर रहे हैं। सो आइडियली शुगर को देखोगे तो आपका प्री डायबिटीज यहां है, बट अगर मैं इंसुलिन को देखूं तो मैं प्री डायबिटीज यहीं पे आ चुका हूं। सो इंसुलिन इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ एक स्लीपिंग डायबिटिक जोन। और अगर इस स्टेज में आप अपने आप को पा लेते हो एंड आप कोशिश करोगे तो यू विल बी एबल टू टेक ए यू टर्न विदाउट गेटिंग इनटू द रियल डायबिटीज। अदरवाइज अगर आप सिर्फ यहां पे ग्लूकोज फोकस करोगे तो आप अपने आप को जब डायबिटिक में पाओगे उस टाइम में HbA1c 7, 7.5, 8, 8.5 पे चला जाएगा। सो यहां हो क्या रहा है, द फर्स्ट पार्ट अप टू दिस, बॉडी इज कॉम्पेंसेटिंग, क्योंकि आपका ग्लूकोज लोड कम नहीं हो रहा है और बॉडी का कैपेसिटी नीचे जा रहा है, एंड यू कीप ऑन पुटिंग लोड इन टर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, बॉडी फिर भी कोशिश कर रहा है को नॉन डायबिटिक जोन में रखने के लिए बाय एलिवेटिंग ग्लूकोज सॉरी इंसुलिन। लेकिन कब तक करेगा, कब तक ये कंपेंसेटरी हाइपरग्लाइसेमिया करे, इंसुलिनेमिया करेगा। इट इज कॉल्ड कंपेंसेटरी हाइपर इंसुलिनेमिया। इंसुलिन इसलिए बढ़ रहा है कि वो कंपेंसेट कर रहा है कि आपको नॉन डायबिटिक जोन में रखे, लेकिन जैसे आपको अगर 5 डे वीक आप 8 घंटे का काम करते हो वर्सेस मैं बोलूंगा नहीं नहीं 8 घंटा नहीं 12 घंटा काम करना है, फिर बाद में बोलूंगा आप 5 डे नहीं 6 डे वीक करो, फिर आफ्टर वाइल मैं बोलूंगा नहीं नहीं 6 दिन नहीं इवन 7 दिन काम करो, आपको वीकेंड नहीं मिलेगा और 12 घंटे से 15 घंटा काम करना पड़ेगा, कब तक कर पाओगे। सो आफ्टर अ वाइल आपका ब्रेक डाउन होने वाला है, आप बीमार पड़ने वाले हो, छुट्टी लोगे ही लोगे। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस एंड दैट इज कॉल्ड डीकम्पेंसेटेड मोड। तो आपका कुछ बीटा सेल डैमेज होने लग जाते हैं। सो कितने भी आप उस पर कोशिश कर लो, आपका बीटा सेल यहाँ पे 10, 15, 20% डैमेज, अगर वही सिलसिला चलता रहा तो आपका 50-60% बीटा सेल डैमेज हो जाएगा, एंड दैट्स नॉट ए ग्रेट साइन। तो इन दिस सिनारियो आपको इंसुलिन इंजेक्शन लेने की भी जरूरत पड़ सकता है, राइट। So as I said, up to this stage is hyperinsulinemia, इंसुलिन बढ़ रहा है लेकिन आप फिर भी नॉन डायबिटिक जोन में हो, चाहे HbA1c भी कंट्रोल हो, शुगर भी कंट्रोल में हो, तो आपका इसको कहा जाएगा कंपेंसेटरी हाइपर इंसुलिनेमिया। लेकिन जब आपका इंसुलिन लेवल घटने लगता है, एट द सेम टाइम आपका शुगर लेवल बढ़ने लगता है और HbA1c बढ़ने लगता है, दिस इज कॉल्ड डीकम्पेंसेटेड इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो अगर आप सीरियसली इस बात को सोचोगे कि बॉडी हाइपर इंसुलिनेमिया विच इज हाई इंसुलिन
फॉलोड बाय इंसुलिन रेजिस्टेंस इस जोन में क्यों जा रहा है? बिकॉज इनिशियली हाइपर इंसुलिनेमिया इज ए बॉडीज प्रोटेक्शन मैकेनिज्म एंड इट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट? इट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्लाइकेशन, जिसको हम ग्लूकोटॉक्सिसिटी भी कहेंगे, जिसको हम बहुत ही कॉमन शुद्ध भाषा में डायबिटीज भी कहेंगे। सो डायबिटीज, ग्लूकोटॉक्सिसिटी, ग्लाइकेशन एक ही चीज है, उसका अलग अलग नाम है। तो इंसुलिन आपको बचाता है इसमें, लेकिन एक कैपेसिटी के बियॉन्ड वो आपको नहीं बचा पाता है। सो अभी हम विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब ये कंपेंसेटरी हाइपर इंसुलिनेमिया होता है, व्हिच सम पीपल कम टू नो एट द राइट टाइम, अगर आप चेक करते रहते हो तभी। लेकिन अगर आप चेक नहीं कर पाओगे तो हाइपर इंसुलिनेमिया नहीं पकड़ नहीं पाओगे। उसके बाद वो जो फॉलिंग ट्रेंड है, उस ट्रेंड में आप उसको शायद पकड़ पाओगे, व्हाट एवर इट मे बी। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज में आप पकड़ पाओगे। तो यहां पे आपको जानना जरूरी है कि अगर ये स्टेज में आता है, जब बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस में एंटर हो जाता है या हाइपर इंसुलिनेमिया में स्टेज में है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और कोई चीज को सीरियसली रियलाइज होने के लिए समटाइम्स डरना जरूरी है। आई होप आप सबने एक बॉलीवुड मूवी आया था, इसके बारे में सुना होगा, देखा होगा। डरना जरूरी है, क्योंकि हमारा एटीट्यूड ऐसा हो चुका है अभी, until the tail is not on the fire we don't get serious about our health। हम पीछे भागे रहते हैं, अचानक जब तक कुछ ऐसे सीरियस नहीं हो जाते, हम सीरियस होते ही नहीं। एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर दैट मैटर सो मेनी पीपल एंड आईसीयू तक पहुंचना पड़ता है, या हार्ट अटैक वगैरह होता है। तो उस कंडीशन में जाके हम सुधरते हैं, अदरवाइज तब तक हमारा हेल्थ लो प्रायोरिटी में रहता है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस या हाइपर इंसुलिनेमिया, दोनों चीजों का मतलब काफी करीबी रिश्ता है। तो वो दोनों चीजें आपके लिए खराब है, हाइपर इंसुलिनेमिया और इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका पहला निशानी है सेंट्रल एडिपोसिटी, अगर पेट बाहर निकला हुआ है तो। सो हियर इज द थिंग, थोड़ा बल्ज्ड बेली हो सकता है इस तरह से, या फिर कल अभी मैंने ये पिक्चर दिखाया था समथिंग लाइक दिस, जिसको हम लीन ओबेस कहते हैं। दूर से अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो हम ओबेस नहीं नजर आते, लेकिन मोटा ओवरऑल बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज ज्यादा है, या फॉर दैट मैटर छोटा सा पाउच बेली है। सो दैट इज कॉल्ड लीन ओबेसिटी। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड टोफी। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस वर्ड? व्हाट इज टोफी मीन? सो इंडियंस मोस्टली बाहर से लीन एंड थिन नजर आते हैं, लेकिन अगर हम उनका एक बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करते तो हमें ये मिलता है कि मसल परसेंटेज कम है वर्सेस फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है। सो दिस इज कॉल्ड टोफी। एंड इसका एक जो प्रॉब्लम यही है, हाई कार्ब डाइट, हाई शुगर डाइट, और हमारा खाने में प्रोटीन की कमी है। बिकॉज सारे मसल्स, आपका पूरा बॉडी जो है प्रोटीन से बना हुआ है। सो जो हमारा ये वर्कशॉप का जो मकसद है वो भी यही बात है कि खाने में से कौन सा चीज ज्यादा होना चाहिए और कौन सा चीज कम होना चाहिए, उसका अंदाजा आप लगाओ थ्रू दिस डिस्कशन। सो एक और जो एक साइन होता है जिससे हमें पता चल सकता है कि बॉडी इज हैविंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो है एकेंथोसिस नाइजरिकन। इसका मतलब होता है डार्कनिंग ऑफ द स्किन, वेदर इट इज इन योर दिस गले का एरिया, या फिर आपका आर्मपिट में हो सकते हैं, या फेस में हो सकते हैं। सो एनीबडी, अगर आपको खुद का है या फिर यू नो एनीबडी हु इज हैविंग दिस, सो दिस इज ए इंडिकेशन। उसके बाद यू कैन ऑल्सो सी पीपल हैविंग दिस काइंड ऑफ डार्कनिंग इन द फिंगर का बैक साइड में। ये बचपन में ही पता चल जाता है, कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं उस ग्रोइंग अप स्टेज में भी ये दिखाई देता है। सो दैट इज अ साइन ऑफ अर्ली इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो ये बच्चा अगर ज्यादा सुधरेगा नहीं, उसका पेरेंट्स अगर टेक केयर नहीं करेंगे, तो इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस रिलेटेड चीजें बहुत जल्दी आ सकता है। उसके बाद आ जाता है ये स्किन टैक्स, इसको कहा जाता है एक्रोकॉर्डेंस। दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो आप जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस को एड्रेस कर लेते हो, थोड़ा वेट लॉस वगैरह हो जाता है, आपका ब्लड रिपोर्ट में देखते हो होमा या फास्टिंग इंसुलिन ड्रॉप होता है, आप देखोगे धीरे धीरे इसका परसेंटेज कम होने लगता है। लेकिन जो बहुत पुराना है, बड़े साइज के होते हैं, वो कभी कभी निकलता नहीं है, तो उसके लिए आप उसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हो। बट एक चीज है, ये आना बंद हो जाता है, राइट। उसके बाद एक्ने। एक्ने तो ग्रोइंग अप स्टेज में, टीनेज में होता है, विच इज लाइक हार्मोनल चेंजेस। बट देन इफ यू हैव क्रॉस दैट एज एंड आप एडल्टहुड में आ चुके हो, 35 मिड 30s में हो, उसके बाद भी बहुत ज्यादा एक्ने हो रहा है, तो दैट्स ऑल्सो साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद हम ब्लड रिपोर्ट देखते हैं, और लिपिड प्रोफाइल में खास करके अगर
ट्राइग्लिसराइड आपका 150 के ऊपर है, नॉर्मल इज 150, जब इसके ऊपर आपका जाता है, विदाउट डूइंग ए फास्टिंग टेस्ट, इंसुलिन टेस्ट, you can understand or know that your body is insulin resistance, high insulin is flooding, तो वो है आपका ट्राइग्लिसराइड। कभी कभी इंसुलिन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन आपका इंसुलिन वही 6, 7, 8 के अंदर है, बट देन अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो इंसुलिन है वो हाइपर एक्टिव होकर काम कर रहा है, बिकॉज आपका फीडिंग अप टू द इंसुलिन बहुत ज्यादा है, आपका कार्बोहाइड्रेट लोड बहुत ज्यादा है, शुगर फ्रुक्टोज लोड बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद आपका VLDL बहुत बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड एंड VLDL इंटर रिलेटेड है, तो ये बेसिकली 30 के नीचे, ये 150 के नीचे होना चाहिए, दिस इज द स्टैंडर्ड गाइडलाइन। लेकिन अगर ऑप्टिमल हेल्थ, फंक्शनल ऑप्टिमल हेल्थ अगर आप मेंटेन करना चाहते हो, तो यू शुड ऑल टारगेट ट्राइग्लिसराइड लेस देन 100 एंड VLDL लेस देन 20। उसके बाद LDL कोलेस्ट्रॉल देखो, तो ये हमेशा हमें 100 प्लस माइनस रहना चाहिए, माइनस रहेगा तो बेटर है, बट थोड़ा सा प्लस होने से भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हियर इट इज टू हाई। एंड देन HDL कोलेस्ट्रॉल, ये हमेशा 40 के ऊपर नहीं, 60 के ऊपर होना चाहिए, ओके, सो 60 प्लस होना चाहिए। उस हिसाब से अगर मैं इसको भी मान लेता हूं तो दिस इज वेरी वेरी लो, एंड लो HDL ऑल्सो इज अ साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फिगर आता है वो है ट्राइग्लिसराइड बाई HDL रेशियो। तो इस केस में आप देखो ट्राइग्लिसराइड 331 और HDL, तो ये वैल्यू कितना ज्यादा है, डेफिनेटली 2 से बहुत ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा अगर ये होगा, दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इस केस में देखो 331 डिवाइडेड बाई 34 बाई 34.9 इज 9.48, दिस इज टू हाई वैल्यू, ओके, दिस इज क्रॉनिक इंसुलिन रेजिस्टेंस। फिर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर अगर आपका है, दैट इज ऑल्सो साइन। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एडिशनल नॉलेज देना चाहूंगा, क्योंकि ये इतना कॉमन है आज की तारीख में, लोगों को पता ही नहीं है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बहुत ज्यादा दुख होता है, आज टीनेजर्स बच्चे में 20-22 साल 18 साल के बच्चों में आज हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज रियली ए स्कैरी थिंग, बिकॉज मेनी पीपल, पेरेंट्स इसको लाइटली लेते हैं, बच्चे तो ऑब्वियसली उनको पता नहीं है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर इज अ साइन ऑफ किडनी डिसफंक्शन, एंड बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है। किडनी इज द ऑर्गन विच एक्चुअली रेगुलेट योर ब्लड प्रेशर। एडल्ट डेफिनेटली आपको ये जानना जरूरी है, बट बच्चों को ज्यादा जानना जरूरी है, और बच्चों के पेरेंट्स को। सो जब हमारा जो 2 किडनी है, इसके अंदर, और एक किडनी का साइज ज्यादा नहीं होता, 3 इंच बाई 2 इंच होता है, इतना छोटा सा, एंड देयर आर 2 किडनीज, each kidney contain small little filters called nephron, so a single nephron looks something like this, तो एक किडनी में 12.5 लाख नेफ्रॉन होता है, 1.25 मिलियन, आप इमेजिन करो, और ये हमारे हेल्दी एंड प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। इसमें से 10-20% नेफ्रॉन डैमेज हो जाएगा तो भी किडनी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जब ये 50% के करीब पहुंचता है तो इसका असर हमें दिखाई देता है EGFR। EGFR इज योर फिल्ट्रेशन रेट, तो फिल्ट्रेशन रेट हमेशा 90% से ऊपर रहना चाहिए। सो 90 के नीचे जब आता है तो आप समझ लो 50% के आसपास नेफ्रॉन आपका डैमेज हो चुका है, एंड नेफ्रॉन डैमेज होता है ड्यू टू इन्फ्लामेशन, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण इंड्यूस होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज भी होता है हाइपरटेंशन के लिए, वो है कॉम्पेंसेटरी हाइपर इंसुलिनेमिया, अभी हमने बात किया था। जब इस कंडीशन में बॉडी आता है तो इसका जो असर होता है इंसुलिन के सॉरी किडनी के ऊपर और नेफ्रॉन के ऊपर, ये जो नेफ्रॉन का सेकेंड पार्ट है, जो फर्स्ट फिल्ट्रेशन यहाँ पे होता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल में, और दूसरा जो इसका टेल है यहाँ पे सेकेंडरी फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पे आपका रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है। सो दिस इज वेयर योर बॉडी जज कि आपका बॉडी में जो जितना हाइड्रेशन है उसके बेसिस पे जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये कितना इलेक्ट्रोलाइट रिटेन करेगा और कितना इलेक्ट्रोलाइट को छोड़ देगा, बट दैट फंक्शनैलिटी कंप्लीटली मेसअप हो जाता है। सो वट एवर इट मे बी, योर किडनी विल स्टार्ट रीअब्सॉर्बिंग सोडियम, बाकी इलेक्ट्रोलाइट को छोड़ देगा लेकिन सोडियम को एब्सॉर्ब करेगा, एंड ये जो सोडियम होता है, सोडियम इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक, ये पानी को खींचता है। अगर कोई डायबिटिक नॉन डायबिटिक है तो उसका सोडियम पानी को खींचेगा, अगर वो डायबिटिक है सोडियम एंड ग्लूकोज दोनों आपका ब्लड में रहेगा, एंड दोनों के दोनों हाइग्रोस्कोपिक है। आप देखो बारिश के मौसम में थोड़ा चीनी अगर बाहर रख देते हुए नमक बाहर रखते हो तो पानी खींचता है, वो गीला पीला पीला गीला गीला हो जाता है, तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, द ब्लड वॉल्यूम गोज अप एंड दैट पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द ब्लड वेसल्स, दैट्स हाउ
hypertension happens. So compensatory hyperinsulinemia is the reason for sodium reabsorption. So sodium reabsorption, water retention होता है किडनी से, आपका वेसल्स के अंदर पानी बढ़ेगा, एंड इसका जो इम्पैक्ट है वेसल्स के ऊपर तो आएगा, एंड इन द लॉन्ग रन इट विल आल्सो हैव इम्पैक्ट ऑन योर हार्ट. अच्छा, उसके बाद एक तो ये ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर डालेगा, बट एट द सेम टाइम आपका वेसल्स भी इम्पैक्ट हो रहा है, डैमेज हो रहा है, बिकॉज जब हाई इंसुलिन बॉडी में होता है तो ये आपका जो एंडोथेलियल लेयर, जो इनर लेयर होता है आर्टरीज एंड वेन्स का, उसको एंडोथेलियल लेयर कहा जाता है, वो डैमेज हो जाते हैं. एंड इसका काम क्या है, ये वेसल्स का इलास्टिसिटी मेंटेन करना. क्योंकि देखो नेचर में ऐसा है, हमारा बॉडी प्रेशर तो बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ना भी एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी में. दैट इज इंडिकेशन बॉडी हैज टू बी हाइपर एक्टिव. तो आपको दौड़ना है, भागना है, तो किसी से लड़ाई करना है, विच इज नॉट करेक्ट, सो यू मे डू ए फाइट विथ एन एनिमल मे बी इन द जंगल. तो जो भी है, ये सारे जो एक्शन वाली मोड होता है, इसके लिए आपका प्रेशर बढ़ना जरूरी है, एंड फॉर दैट आवर वेसल्स आर रेडी टू टेक दैट एक्स्ट्रा प्रेशर. एंड उसके लिए होता है एंडोथेलियल लेयर में वो कैपेसिटी है, वैसोडाइलेशन कैपेसिटी है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन कैपेसिटी है. सो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होगा. आज रिजल्ट आपका आर्टेरियल वैसोकंस्ट्रिक्शन, या फॉर दैट मैटर इसको कहते हैं रिजिडिटी ऑफ आर्टरीज बढ़ जाता है. इट विल आल्सो ऐड टू द प्रॉब्लम ऑफ हाइपरटेंशन. अगर आपका वेसल्स को हेल्दी रखना है, इंसुलिन सेंसिटिविटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है. एंडोथेलियल प्रोटेक्शन होता है इंसुलिन सेंसिटिविटी. और थोड़ा सा भी अगर लार्जर पिक्चर हम देखते हैं, जब इंसुलिन बॉडी सेंसिटिव होता है तो नेचुरली आपका लीवर क्लीन है, यहाँ पे ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन, मसल्स के अंदर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन, एंड जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैट है वो हमारा विसरल एरिया में रहता है. बट एज आई सेड, बिकॉज वी कीप ऑन लोडिंग ऑन कार्ब्स 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 कार्ब्स, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, तो उम्र के साथ साथ ओबेसिटी बढ़ता है. इंसुलिन बढ़ेगा और वो कन्वर्ट करेगा फैट में. तो जब आपका विसरल एरिया फुल हो जाएगा तो आपका जो सबक्यूटेनियस एरिया है वहां पे डिपॉजिट होगा, so that will reflect as obesity. But at the same time, the high insulin will also start pushing some fat into the liver, and that is where fatty liver comes. It will also start pushing fat inside your muscles. So बाहर से आप चबी चबी नजर आओगे, थोड़ा फुला फुला रहेगा बॉडी, चबी चबी, ठीक है. सो यहाँ पे इंसुलिन सेंसिटिविटी है, यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस है. तो प्रोसेस क्या हो रहा है, प्रोसेस यही हो रहा है कि हाई इंसुलिन जो है, this will make those excess sugar to fat and it will push inside the adipose cell initially, but later part में ये liver and muscles के अंदर भी push करेगा. So उससे होगा आपका liver damage, fatty liver. खास करके जिन लोगों को फैटी लीवर है, आपको समझना पड़ेगा फैटी लीवर का दो सोर्स है. सोर्स नंबर 1 इज अल्कोहलिक फैटी लिवर, नो रॉकेट साइंस, इट इज ड्यू टू अल्कोहल. सो जो लोग फैटी लिवर है और अल्कोहल पीते हो तो आपको तो अल्कोहल छोड़ना पड़ेगा, ये आपके लिए उल्टा काम कर रहा है. But let me tell you, maximum global population and Indian population are having non-alcoholic fatty liver disease. तो आप अल्कोहल नहीं पी रहे हो, आप प्योर वेजिटेरियन हो, सात्विक इंसान हो, पूजा पाठ करने वाला, लेकिन फिर भी आपका फैटी लिवर है. क्यों? Because the other source of fatty liver is metabolic causes insulin resistance. और इंसुलिन रेजिस्टेंस साथ में आपका ओबेसिटी है, साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और आप वेजिटेरियन हो जहां पे आपका कार्बोहाइड्रेट इंडल्जेंस बहुत ज्यादा है, शुगर डाइट पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है तो वही शुगर में कन्वर्ट होता है. आप बहुत ज्यादा फ्रुक्टोज इंडल्जमेंट हो रहा है. फ्रूट्स, क्योंकि हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फ्रूट इज लाइक सुपर फूड, ये हमारा सात्विक है, भगवान को हम प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हम फ्रूट के साथ बहुत ज्यादा इंडल्ज होते हैं. राइट? एग्री करते हो इस चीज को? आप चैट बॉक्स में यूज करके बताओ. वी ओवर इंडल्ज विथ फ्रूट्स और फ्रूट जूस फॉर दैट मैटर. तो जब हमारा उपवास का दिन होता है, हम उस दिन सिर्फ फ्रूट्स खा के पूरा दिन गुजार देते हैं, क्योंकि फ्रूट्स तो है ना, भगवान है, प्रसाद है. सो फ्रुक्टोज, 3 चीजों से फैटी लिवर बढ़ता है. अल्कोहल, उसमें बियर, और लोग देखो जो लोग अल्कोहल भी पीते हैं वो लोग बियर को लाइट समझ के बियर पीते हैं. मैं विस्की नहीं पीता, मैं रम नहीं पीता, मैं वाइन नहीं पीता, मैं बियर पीता हूँ, क्योंकि बियर बहुत लाइट होता है. जबकि बियर इज सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज होता है, वो सारे के सारे आपका मैक्सिमम कन्वर्शन होता है फैट में. फ्रूट्स एंड फ्रुक्टोज से होता है, प्लस हम जो रेगुलर शुगर खा रहे हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, वहां से भी होता है.
राइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से भी होता है। उसके बाद एक फीमेल केस, फीमेल का जो एक कंडीशन होता है पीसीओएस, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, पॉलीसिस्टिक ओवरिक सिंड्रोम, which leads to infertility, which leads to irregular periods, एंड इसका और बहुत सारी चीजें होती है। तो मैंने आपको सिम्टम्स बताया, सो आप देख सकते हो हेयर लॉस होता है, बॉडी में अनवांटेड प्लेसेस में बहुत ज्यादा, यू माइट हैव सीन फीमेल हैविंग सम बियर्ड एंड मॉस्टैच, पेल्विक पेन बहुत ज्यादा होता है, इनफर्टिलिटी की तरफ जाता है, वेट लॉस नहीं कर पाते, वेट गेन होता है, इरेगुलर पीरियड्स, ऑल दिस थिंग्स। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज जो होता है वो इंसुलिन से ड्रिवन है, वो है हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल। एज यू ऑल नो, टेस्टोस्टेरोन इज ए मेल सेक्स हार्मोन, बट एट द सेम टाइम फीमेल बॉडी में भी होता है, बट बहुत मिनिमम लेवल पे होता है। बट जिन लोगों को पीसीओएस होता है उनका बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, एंड दिस एलिवेटेड टेस्टोस्टेरोन लेवल इज इंसुलिन ड्रिवन। सो अगर इसको थोड़ा सा मैं डीप समझाने की कोशिश करूं कि दिस इज हाउ ए ओवेरियन क्रॉस सेक्शन लुक्स लाइक, जिसमें दो तरह का सेल होते हैं, ग्रैनुलोजा सेल एंड थिका सेल। सो इसमें काफी सारे हार्मोन्स का रोल प्ले होता है। तो LH एंड FSH मंथली पीरियड्स के टाइम में ये हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी है वहां से सिक्रेट होता है, एंड दिस LH स्टिमुलेट्स दिस थिका सेल टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन इन ए वेरी कंट्रोल्ड एंड माइन्यूट लेवल पे। यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं इंसुलिन। अगर बॉडी में इंसुलिन ज्यादा होगा तो ये क्या करता है, थिका सेल को हाइपर स्टिमुलेट कर देता है, हाइजैक कर लेता है LH को, उसको बोलता है तू हट मैं रेगुलेट करूंगा, एंड देन इट हाइपर स्टिमुलेट थिका सेल, एंड ये हाइपर प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है। तो जिससे पूरा हार्मोनल सिम्फोनी है वो कंप्लीटली मेसअप हो जाता है, एंड दैट लीड्स टुवर्ड्स पीसीओएस। एंड देन ऑफ कोर्स पीसीओएस का जो दूसरे रीजन होता है वो आपका स्ट्रेस भी होता है, इन्फ्लामेशन एक मेजर फैक्टर है, सो ऑल दिस थिंग्स। सो हाउ टू एड्रेस इंसुलिन रेजिस्टेंस or hyperinsulinemia. So insulin resistance is the next stage, before that hyperinsulinemia. So सबसे पहले ये सारे सिम्टम्स से तो आपको पता चल जाएगा, बट यू कैन नॉट कंक्लूड इट कॉन्फिडेंटली अंटिल यू डोंट गेट ए ब्लड टेस्ट डन, राइट। सो ब्लड टेस्ट जैसे हम फास्टिंग शुगर का टेस्ट करते हैं, ठीक उसी तरह देयर इज ए टेस्ट कॉल्ड फास्टिंग इंसुलिन और इंसुलिन फास्टिंग। सो जब आप इसको टेस्ट करोगे रिपोर्ट में आएगा, और जैसे मैंने अभी बताया था ये जो रिपोर्ट में स्टैंडर्ड रेंज डिफाइंड है वो 1940-45 में जब इंसुलिन का लैब में पहले डिस्कवरी हुआ था, कैसे लैब में फाइंड आउट करने का, उस टाइम में जो डिफाइंड हुआ था इसका रेंज 2 to 2.5 होता है मिनिमम से 25, वो तब से लेके आज तक वही का वही रेंज पड़ा हुआ है। बिकॉज आफ्टर इनिशियल डिस्कवरी एंड लैब टेस्टिंग के बाद 10 साल के बाद इंसुलिन टेस्टिंग बंद हो गया। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास डायबिटीज की दवाई आ गई। जब डायबिटीज की दवाई नहीं थी तब तक बेस्ड ऑन द इंसुलिन का फंक्शन एंड ऑल दिस थिंग्स हम डाइटरी एंड लाइफस्टाइल चेंज करते थे, एंड उसके हिसाब से इंसुलिन को रेगुलेट करते थे टू कंट्रोल योर डायबिटीज। बट जब से इंसुलिन डायबिटीज की दवाई आ गई तो हम इंसुलिन टेस्ट करना बंद कर दिया। सो इट इज लाइक पुटिंग इट बिलो द कारपेट। उसके बाद से इंसुलिन टेस्ट सब लोगों ने बंद कर दिया, कोई नहीं करता है। लेकिन there are always independent researchers who work on this particular going beyond standard medical protocol। तो जितने भी डेटा वो लोग जनरेट किया है उसमें से ये पता चल रहा है कि इंसुलिन जब तक 6.5 मैक्सिमम 7 के अंदर है सब कुछ बढ़िया है। once it starts going above that you may not be diabetic but all the other metabolic conditions crop up, and then एक टाइम आता है जब डायबिटीज की तरफ चला जाता है। सो आप जब भी इंसुलिन का टेस्ट करोगे यू विल ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर द ऑप्टिमल रेंज, एंड यू विल मेक एफर्ट टू अचीव दिस ऑप्टिमल रेंज टू 2.6 to 6। तो जैसे मैंने बताया सिंगल डिजिट बहुत जरूरी है, 9 के तो नीचे होना ही चाहिए। बट इसमें भी आप देखो 6, 7, 8, 9, अगर मैं 6, 7, 8, 9 पे रहते हुए और कोई मेरा ओबेसिटी नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, सब कुछ पिक्चर परफेक्ट है, तो दिस इज फाइन। बट अगर 6, 7, 9 हो के भी 8, 9 हो के भी अगर ये सारे चीजें है तो देन यू हैव टू ब्रिंग इट टू बिलो 6। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फास्टिंग इंसुलिन इंपैक्ट्स फास्टिंग ब्लड शुगर, एवरेज ब्लड शुगर एंड HbA1c। तो अगर हम सिर्फ HbA1c और ब्लड शुगर पे देख रहे हैं विदाउट टेस्टिंग फास्टिंग इंसुलिन, इट इज कंप्लीटली मीनिंगलेस। एटलीस्ट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इट इज मीनिंगलेस। मेरे पास कोई भी रिपोर्ट एनालिसिस कराने के लिए आता है या हेल्थ चेकअप कराने के लिए आता है,
विदाउट सीइंग इंसुलिन टेस्ट आई डू नॉट गिव ए कंक्लूसिव एनालिसिस। मैं बोलता हूं आप लेके आओ इंसुलिन, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ सिनारियो देखते हैं वेयर यू मे फाइंड योरसेल्फ। तो व्हेन यू गेट योर दिस थ्री इंपॉर्टेंट टेस्ट डन, एक है इंसुलिन, दूसरा है ब्लड शुगर एंड तीसरा है आपका HbA1c। सो द मोस्ट एब्सोल्यूट क्रिस्टल क्लियर बेस्ट प्लेस इज व्हेन योर फास्टिंग इंसुलिन इज 2.5 to 6 के बीच में है, आपका ब्लड शुगर फास्टिंग 100 के नीचे है एंड HbA1c 5.7 के नीचे। सो दैट मीन्स मैं ये तीन चीजें देख के बोल सकता हूं कि आपका ऑल अदर मेजर जो ब्लड मार्कर्स होते हैं ये सारे वेल विद इन रेंज होगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वगैरह हो सकता है, D B12 कम हो सकता है, आयरन कम हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट एटलीस्ट आपका लिवर प्रोफाइल, KFT, LFT एंड लिवर लिपिड प्रोफाइल ये आपके परफेक्ट होंगे, राइट? सो यू आर मेटाबॉलिकली हेल्दी इंडिविजुअल, वी कैन कंक्लूड जस्ट विद दीज थ्री थिंग्स। बट देन आप अपने आप को इस कंडीशन में भी पा सकते हो वेयर इंसुलिन फास्टिंग इज गोइंग अबव 6, whereas your sugar and HbA1c are well within the range. So इस केस में अब डायबिटिक डेफिनेटली नहीं हो, यू आर ए नॉन डायबिटिक पर्सन, बट देन यू मे और मे नॉट बी इन हेल्दी रेंज। आपका बाकी जो मेटाबॉलिक पैरामीटर्स है, जैसे आपका लिपिड बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन बढ़ सकता है, राइट? ओबेसिटी हो सकता है, फैटी लिवर हो सकता है, एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल, PCOS हो सकता है, इवन इफ योर दीज थिंग्स आर कंट्रोल, बट अगर इंसुलिन बढ़ा हुआ है तो। नेक्स्ट इज आपका इंसुलिन भी बढ़ा हुआ है, शुगर भी बढ़ा हुआ है, HbA1c बढ़ा हुआ है, तो गारंटेड है आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक जोन में हो, डिपेंडिंग अपॉन वेयर योर HbA1c इज। बट एट द सेम टाइम यू विल फाइंड योरसेल्फ विथ आइदर ए ओबेस और ए लीन ओबेस और ए टोफी, जहां पे विसरल ओबेसिटी होती है, हाइपरटेंशन, फैटी लिवर, PCOS, एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल, थायराइड डिस्फंक्शन, ये कुछ भी हो सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो, कहीं पे भी हो सकता है, राइट? सो खाली फास्टिंग इंसुलिन से नहीं होगा। द मोमेंट यू गेट योर फास्टिंग इंसुलिन डन, सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स दैट टेल्स द रियल पिक्चर। ये जो वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मेनी प्लेसेस आपको फास्टिंग इंसुलिन 6 के अंदर ही मिलेगा, 6, 7, 5 यहां पे मिलेगा, तो फास्टिंग इंसुलिन वाइज आप सही जोन में हो, लेकिन इसका इंपैक्ट ब्लड शुगर के ऊपर क्या है उसको देखने के लिए दिस पर्टिकुलर इंडेक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कॉल्ड होमा IR इंडेक्स, होम्योस्टैटिक मॉडल ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो यहां पे what you need to do is you need to multiply this fasting insulin and fasting glucose and divide it by 405, and this should be in this range. The super ideal range where you will call you are a metabolically perfect, picture perfect आपका है जब आपका ये जो इंडेक्स है वो 1.5 के नीचे। Having said that, इवन 2.5 तक एक्सेप्टेबल है, हम बोलेंगे मॉडरेट इंसुलिन रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा आप काम करोगे अपने ऊपर तो वो करेक्ट हो जाएगा। सो इट इज नॉट दैट डेंजरस, बट व्हेन इट स्टार्ट्स एक्सीडिंग 2.5 यू आर नॉट इन अ वेरी गुड स्पेस। सो इस स्पेस में जब आप रहते हो तो इस केस में आपका कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक कंडीशन आ जाता है, एंड जितना फार्दर आप जाते हो वो क्रॉनिक होता जाता है। So if fasting insulin is less than 2.5, this is a typical scenario, मेरे पास केसेस आते हैं एंड पीपल मे गेट देमसेल्फ इन दिस जोन। तो आप देखो शुगर बढ़ा हुआ है, HbA1c बढ़ा हुआ है, द पर्सन इज डायबिटिक, बट आप इंसुलिन जब देखते हो ये 2.5 से नीचे है। नाउ दिस सिनारियो इज कॉल्ड बीटा सेल एग्जॉशन। आपने याद हुआ कॉम्पेंसेटरी हाइपर इंसुलिनेमिया, उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है जहां पे आपका पैनक्रियाटिक बीटा सेल डैमेज होने लग जाता है। तो जब लेस देन 2.5 पे जा रहा है मतलब काफी हद तक 80% बीटा सेल डैमेज हो चुका है। नाउ इन दिस सिनारियो दिस पर्सन ओवर इंटेलिजेंस हो रहा है, एक तो ये कम है, उसके ऊपर ओवर इंटेलिजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर हो रहा है, एंड डायबिटिक मेडिकेशन कैन ऑल्सो डू दिस। तो ओवर इंटेलिजेंस ऑफ खाली कार्बोहाइड्रेट से नहीं होता है, डायबिटिक मेडिकेशन भी हो रहा है, इसका मतलब विच इज फर्दर डैमेजिंग। तो ऐसे सिनारियो में ये सारे चीजों से दूर रह के बाहर से इंसुलिन देने से, इंसुलिन सपोर्ट अगर देंगे तो उससे हमारा बीटा सेल बच जाएगा जितना है, और हो सकता है बीटा सेल रिजुबिनेट भी हो सकता है। दिस इज ए कंडीशनल थिंग, किसका बॉडी कैसे रेस्पॉन्स करेगा, बट इन सच सिनारियो गिविंग द पर्सन एक्सटर्नल इंसुलिन सपोर्ट इज ए मच वाइजर डिसीजन रादर देन, क्योंकि लोग इंजेक्शन से डरते हैं। डॉक्टर बोलेंगे अगर मैं इंसुलिन इंजेक्शन नहीं दूंगा तो आपको 4 के बदले 6 दवाई दे दूंगा। लोग बोलते हैं हाँ दे दो मेरे को 6 क्या, मैं 8 भी खा लूंगा, लेकिन मेरे को इंसुलिन नहीं लगाना है।
सो इन सच सिनारियो जहां पे इंसुलिन इतना कम हो रहा है, वहां पे आप दवाई ले रहे हो तो ये फर्दर डैमेज कर रहे हो. टेकिंग इंसुलिन इज अ वाइजर डिसीजन. So at this place, let me take a pause here and ask you, how is it going? Are you getting the point that I am trying to deliver to all of you? And the logic that what I am trying to convey you. Please use the chat box and let me know. Absolutely. Very clear. Thank you. So यही पर्पस है, आप सब तक राइट मैसेज जाए एंड यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर metabolic health. So that's the only purpose of this workshop. So do it yourself. If you cannot, I am there to help you. So you can always choose to go for my guided program, about which I will be telling you tomorrow. But then the sole purpose is be aware and try to take control of your own metabolic health. Now before moving forward, आपको मतलब आज का कंक्लूजन की तरफ हम जा रहे हैं. बट हैविंग सेड दैट, आई हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट फर्दर जो दिखाने वाला हूं अब, इसलिए चेकआउट लॉग आउट करके मत जाओ. सो लेट्स नाउ सी फ्यू केस स्टडीज. सो हियर इज ए यंग मैन, इज ए 39-year-old person. He signed up with me for his many chronic condition, जिसके पीछे का जो दुश्मन बैठा है बॉडी के अंदर वो है elevated insulin, which is hyperinsulinemia. Why I say hyperinsulinemia? Because आप यहाँ पे पढ़ोगे, I am Salik, 39 years. Within 2 months, my insulin fasting. Look at this. हमने देखा 2.5 से 25 जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है, लेकिन आपको आइडियली रहना है 2.5 to 6 के बीच में. तो इस रेंज के हिसाब से 29, मतलब फ्लडिंग नहीं, इसको मैं बोलता हूं सुनामी ऑफ इंसुलिन हो रहा है. तो वहां से 2 महीने के अंदर उसने जैसे ही 12.6 पे लेके आया. अच्छा, ही वॉज नॉट डायबिटिक बाय द वे, उसका डायबिटिक पैरामीटर्स पिक्चर परफेक्ट था, वो 5.4 के आसपास था. राइट, कोई हाइपरटेंशन नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, फैटी लिवर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं, कुछ नहीं है, जस्ट ओबेसिटी, नथिंग एल्स. सो इन ए वे ही वॉज इन ए बेटर स्पेस. अगर ओबेसिटी के साथ साथ उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता, फैटी लिवर होता, सो दैट मीन्स आपका मल्टीपल डैमेज हुआ है. अच्छा, यहां पे एक और चीज मैं आपको बताऊंगा. सो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक यूआरएल मैंने दिया है. आज मैं आप सबके साथ ये यूआरएल शेयर करूंगा. रादर लेट मी शेयर दैट यूआरएल हियर. व्हाई आई एम सेइंग दिस, मैं आपको बताता हूं आगे. सो मैं चैट बॉक्स में भी शेयर कर दिया ये लिंक, एंड देन आई एम ऑल्सो शेयरिंग इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप. सो आज आपका जो कल आपने फीडबैक दिया था, आपका जो भी वर्कशॉप के बारे में, वो आपने दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में. सो टुडे आई विल सीक योर फीडबैक इन दिस पर्टिकुलर यूआरएल. सो दिस इज ट्रस्टपायलट वेबसाइट, जहां पे लोग अपना सक्सेस स्टोरीज, अपनी खुशी जाहिर करते हैं, एंड विच ऑल्सो बेनिफिट मी. ओके, उसमें एक स्टार रेटिंग होता है, तो वहां पे आप करिएगा, एंड देन वट एवर यू फेल्ट लाइक अबाउट दिस 2 days, वट एवर यू लर्न, उसके बारे में आप लिखिएगा. सो एनीवे, सो दिस गाय आप देखोगे 29.2 से 12.6 आया. अच्छा, उसका पीपी इंसुलिन कितना था? 538. हॉरिबल, हॉरिबल. सो 2 महीने का जो प्रोग्राम उसने मेरे साथ किया था, 29.2 to 12.6, दिस केम डाउन टू 39.9. मोर लॉजिकल जगह पे आ गया. और इसका रिजल्टेंट क्या हुआ? माई वेट वॉज 133 kg, नाउ 118 kg. कैन यू इमेजिन? ऑलमोस्ट 15 किलो के आसपास कम हुआ 2 महीने में. ऑफ कोर्स ये पुराना है, ये है आपका अप्रैल का है. द अदर डे आई वाज चैटिंग विथ हिम, ही इज इन वेरी वेरी वेल, इन 2 digit उसका वेट है अभी, एंड ही इज फिट, फीलिंग अमेजिंग, वेरी फिट, agile. So this is the kind of result people are getting when they are addressing to their insulin. You can see this young boy here. So insulin fasting was, of course ये मेरा पुराना केस है, 21-22 का है. सो ये 1 year का जर्नी है. अब देखो 20.55 जब था, ही वॉज 120 kg. बाय ब्रिंगिंग इट डाउन टू 9.7, सिंगल डिजिट पे जब आ गया, कितना कम हो गया? 91, नियरली 30 kg. राइट. सो दिस इज हिज टेस्टिमोनियल विच आई एम नॉट गोइंग थ्रू. आप यहाँ पे एक और केस स्टडीज देख सकते हो. यू नो, दिस इज फ्रॉम जनवरी, सॉरी, दिस इज फ्रॉम, दिस इज ऑग, तो जो भी है आप देखो यहाँ पे. सो
29.6 से 11.2 फास्टिंग इंसुलिन, होमा IR 6.2 टू 2.41 जो कि 1.5 के नीचे होना जरूरी है. सो द मैसेज इज, मेरा वेट 101 किलो था, आज मेरा वेट 88, 13 kg वेट रिड्यूस किया. यू कैन सी द पिक्चर हियर. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसका रिजल्टेंट फैटी लिवर गॉट क्योर्ड. Isn't it amazing? You can see another picture here, physical आप देख पा रहे हो. So इसका पीछे की कहानी है fasting insulin, sorry, this is fasting blood sugar. Insulin fasting 21.8 to 10.7. HbA1c was 12.5. Diabetic came down to 6.1. Significant improvement from January to May. And then here is his testimonial. You can see the picture here. Myself today standing 96 to 75. Weight loss, जो भी आप देख सकते हो. HbA1c 12.5 to 6.1. Fasting sugar 286 to 112. So this is the kind of result people get when they work to address towards addressing their insulin resistance. मेरे YouTube चैनल में अगर आप जाएंगे तो lot and lot of वीडियो टेस्टिमोनियल्स पड़ा हुआ है. और यहाँ पे आप, ये पुराना है, 137 नहीं, अभी 160 के आसपास टेस्टिमोनियल पड़ा हुआ है. सो यू कैन सी दिस थिंग्स. एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो देन वी विल गेट इनटू दिस विशियस सर्कल ऑफ, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ड्रिवन है. और इससे तो होगा ही होगा आपका ओबेसिटी, इससे होगा हाइपरटेंशन, फैटी लिवर एंड डायबिटीज. बट देन एट द सेम टाइम इट ऑल्सो लंबा टाइम तक, लॉन्ग एनफ टाइम तक अगर बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस में रहेगा, ओबेसिटी के साथ रहेगा, डायबिटीज के साथ रहेगा, तो इट ब्रिंग्स अ कंडीशन कॉल्ड inflammation. And this is something that drives most of the diseases. And people struggling to lose weight, this also hinder your weight loss process. So we shall cover inflammation in great detail tomorrow. And आज हम exactly 1 घंटा जो प्लान था उसी में हम खत्म कर पाए. But having said that, we are not yet finished. Attendance time आ गया, तो मैं अभी शेयर करूंगा गूगल फॉर्म इन द चैट बॉक्स एज वेल एज इन द व्हाट्सएप ग्रुप. सो प्लीज मेक एफर्ट टू फिल इट अप. सो मूविंग फॉरवर्ड, day 2 recap what we learned today. So we learned today insulin is not just for sugar or sugar management. It is also the master hormone for many things. But the key things are growth hormone, energy managing hormone. Normal blood sugar can hide high insulin. So whenever you are checking blood glucose or blood sugar, you must check insulin as well. So अगर आप उसको चेक नहीं कर रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा, right? You need to test it along with blood sugar to know the exact status of your insulin's efficiency, जिसको हम insulin resistance, insulin sensitivity, HOMA IR, ये सबसे पता करते हैं. Insulin resistance is the hidden root cause of many problems. Many problems. इसको मैं बोलता हूं, it is the sleeping elephant inside the room. Unfortunately, उसको हम देख नहीं पाते, right? और हम परेशान होते रहते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, ओबेसिटी क्यों हो रहा है, वेट लॉस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, PCOS क्यों हो रहा है, थायराइड क्यों हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है, फैटी लिवर क्यों बढ़ रहा है. I am doing everything right, but then because you are not addressing to the hidden elephant. Right? The very good news is it is reversible, and that's what you exactly saw with the few case studies that I showed you. With the right nutrition and lifestyle. So मजे की चीज यही है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में डॉक्टर्स या कोई भी जनरल मीडिया क्यों नहीं बात करता है. द रीजन इज देयर इज नो मेडिसिन फॉर इट. देयर इज नो पिल पॉप अप करने से आप इसको करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं. सो द ओनली नेचुरल मेडिसिन इज योर न्यूट्रिशन, डाइट एंड लाइफस्टाइल. एंड वो करना मुश्किल है और ये दुकानों में नहीं मिलता, केमिस्ट शॉप में नहीं मिलता. सो दैट वाज टुडेस ऑल डिस्कशन. एंड जैसे कि मैंने बताया था, आपका आज का जो फीडबैक है वो आप मेरा ट्रस्ट पायलट लिंक जो मैंने शेयर किया है ग्रुप में, आई मीन व्हाट्सएप ग्रुप में, एंड हियर प्लीज गिव इट देयर, सो इट विल बेनिफिट मी. एंड डू रिमेंबर टू ज्वाइन टुमारो एट द सेम टाइम. 5 मिनट 10 मिनट
7 से पहले आप ज्वाइन करो, सो दैट अगर आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंड अगर आपने इंसुलिन फिक्स ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज उसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। एंड दिस इज समथिंग, पहले मैंने ये डिसाइड किया था कि जो रिकॉर्डिंग है ये मैं फ्रीली अवेलेबल नहीं कराऊंगा, बिकॉज बहुत लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं, नहीं देखते हैं, बट देन फ्यू पीपल रिक्वेस्टेड मी यस्टरडे पर्सनली, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है 3 डे मैं फ्री में दे रहा हूं। बट दोज पीपल हु आर सीरियसली वांट टू ओन दिस रिकॉर्डिंग फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ताकि आप बार बार इसको देख सको, इसके साथ ये मैं आपको दूंगा ऑन ए मिनिमम पेमेंट बेसिस 299 रुपीज, जिसको आप परचेज कर सकते हो इस ऐप के अंदर से स्टोर फ्रंट में जाके। सो वो आप कर सकते हो। एंड इसके साथ आपको 2 फ्री गिफ्ट वीडियो कोर्सेज भी मिलेगा अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट फंक्शनल मेडिसिन, हाउ टू अप्रोच योर ओवरऑल हेल्थ, राइट? सो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।